Hi, good evening, friends. Welcome back to my channel Triple A Easy Trading and Investing with Man Thapa. So today we are going to discuss about a company. So what this company does, the company name is Apigral Limited. It's a Indian leading CPVC and specialty chemical maker. Reported Q2 financial year 2026 revenue of 589 crore. Could this be your next long-term wealth creator? Let's discuss it. Is formerly known as an Mega Money Fine Cam. Epigrel expansion in CPVC and epichlorophline are driving growth, but margin dipped in Q2. In next few minutes, I will show why this stock could be a long-term wealth creator. Let's deep dive into how a Epigrel market makes the money. Epigrel operates in two key segments, derivatives and specialty chemicals, which contribute 56%. CPVC resin 1,50,000 ton per annum, doubled in financial year 2025 from previous capacity, which is 100% growth. Epichlorohydrin targeting 100,000 ton per annum by H1 financial year 2027. Massive expansion going on. Chlorotoluenos commissions March 2025, ramping up, and hydrogen peroxide. Chloralkyl and basics 44%, caustic soda 400 KTPA, chloromethane, chlorine, and hydrogen. They serve construction, pharma companies, and agrochemicals from their Dahej complex. Now you know what they segments walk into. Let's check their order value. So, Apical order book is its capacity utilization and expansion pipeline. So, current capacity is CPVC 1,50,000 ton per annum, which is doubled in financial year 2025 is compared to the last year. Epichlorodium target is 100,000 TPA by H1 financial 2027. Chlorotinium ramping up. In Q2 financial 2026, the volume grew 2% year on year. Management target higher utilization in H2. Why Epigrel growing? Let's look at the industry as well. So, rupees 2 lakh crore specialty chemical market grew 12% annually. Import substitution China plus one. Atmanirbhar Bharat demand from construction infra for CPVC and ESC. Epigrel is the first in India for ECH and chlorotonians, largest CPVC producer. What's the Epigrel growth plans? Let's look into that. They target 20% annual growth, doubling revenue by financial year 2028 by CPVC and ECH expansion and chlorotoluenos. Q2 financial 2026 revenue is 589 crore minus 4% year on year, but H2 recovery is expected. Wind, solar, hydro power to 38 megawatt in Q4 financial 2026. Track record financial 2025 revenue is 2,550 crores, which is 33% year on year, and 356 crores PAT, which is 82% year on year. Growth looks solid, but what are the risks and challenges? Let's look into this. Q2 financial 2026 EBITDA down 19% to 136 crores, margin at 23% due to lower realization and shutdowns. High debtor days of 90, strained cash flows, single plant risk in Dahej, global price fall could squeeze the margin as well. Now look at the number. लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका 6,000 करोड़ के आसपास का है, 5,993 करोड़ ऑन वेरी ब्रीफ। अभी जो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1,389 रुपीज़ का चल रहा है, लेकिन अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे तो वो 2,698 है। ऑलमोस्ट हाफ प्राइस, करंट प्राइस जो है वो हाफ चल रहा है इंट्रिंसिक प्राइस के। इससे हाई जो है इसने बनाया था 2,114 का, करंट प्राइस जो है वो 1389 का, और लो जो है वो 1374 का बनाया था। तो ऑलमोस्ट जो है 52 वीक लो के आसपास में चल रहा है। स्टॉक का पी जो है वो 15 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 26 है, तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम है। प्राइस टू बुक जो इसका जो है ये इसका प्राइस टू बुक जो है वो 2.85 का है, इंडस्ट्री का जो है 2.78 है, तो इंडस्ट्री से हल्का सा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है अगर हम इसको प्राइस टू बुक से कंपेयर करें। CFO बाय पैट जो है वो बेहतरीन है, 158% है। ऑल टाइम हाई से अभी जो है हमें 42% जो हमें सस्ता मिल रहा है। पैट्रिस्टिक स्कोर 8 है, जो कि एक्सट्रीमली गुड है। पैग रेशियो जो है वो 1.28 है। अगर पी और ग्रोथ को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1.28 आ रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ROC और ROE बेहतरीन है, 25 और 22.3%, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है, यहीं पर ही जो है इसका फ्री कैश फ्लो इन्होंने 254 करोड़ का रखा हुआ है। वहीं पर ही जो है इसके पास में कुछ जो वो डेट भी है, जो कि 0.26 जो है वो इक्विटी का रेशो है। ठीक है, तो ये अगर हम इसके फंडामेंटल्स वगैरह देखें तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर हम प्राइस टू बुक का अगर हम देखें तो अगर मैं इसको 10 साल में देखूँ, मेरे पास में डेटा 2021 से है, तो हम जो है इसको 5 साल का देखेंगे। 5 साल में अगर हम देखें तो ये जो है
बिल्कुल 2.9, बिल्कुल वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे है। लास्ट में 3.4 के आसपास में हमें ये देखने को मिला था। 3 साल के अगर मैं देखूं तो तभी भी जो है बिल्कुल लोएस्ट में दिख रहा है। ये हमें 3.3 का इसका जो ये था एवरेज से काफ़ी डाउन हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसको पी रेशियो अगर मैं 3 साल में देखूँ तो अगेन पी रेशियो जो है वो 14.9 का है। लोएस्ट अगर मैं देखूँ तो लोएस्ट जो है 9.8 भी गया हुआ है, लेकिन अगर मैं एवरेज से देखूँ तो जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर मैं इसको 5 साल में अगर इसका पी देखूँ तो 14.9 है इसका जो एवरेज, जो यहाँ पे जो इसका जो एवरेज जो रहता था वो इसका है 20 के आसपास का। तो अभी हमें जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको जो है पीई से अगर मैं कंपेयर करूँ, चाहे वो इसको खुद के हिस्ट्री से कंपेयर करूँ या दूसरे इसके पीयर से कंपेयर करूँ, तो पी वाइज जो है सस्ता है। प्राइस टू बुक वाइज अगर मैं इसके पीयर से कंपेयर करूँ तो एग्जैक्टली सेम लेवल के आसपास में ही है, लेकिन अगर मैं खुद से इसके वैल्यूएशन से कंपेयर करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी हमें जो है काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ़ी जो है डाउन हमें यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। प्रोज जो है कंपनीज के जो है रिड्यूस जो है इसने डेट करे हैं। कंपनी का जो है अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो 24.8 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कॉन्स में दिखा रहा है कि कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एज वेल। तो पीयर्स कंपैरिजन हम एक बार कर लेते हो तो केमिकल कंपनी में जो है अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूँ तो इसका करंट मार्केट बुक वैल्यू अगर मैं जितने भी इसके यहाँ पे कंपटीशन में देखने तो सबसे अच्छी वैल्यूएशन जो है वो इसकी, सबसे कम वैल्यूएशन इसकी देखने को मिल रही है 2.85, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर ही अगर जो है अगर मैं इसका लास्ट 3 साल का जो है अगर मैं सेल देखूँ तो उसमें भी जो है ये सबसे बेहतरीन सेल्स जो है इन्होंने ग्रो कराया। 18% के हिसाब से इन्होंने सेल ग्रो करा हुआ लास्ट 3 सालों में, जो कि एक्सेप्शनली गुड है। इसके बाद में जो है नवीन फ्लोरोकेम का जो है 17.36 का है। वहीं पर ही आर अगर मैं देखूँ तो सबसे बेहतरीन है 24.8 का। लाइक वाइज जो है अगर मैं आर भी देखूँ तो सबसे बेहतरीन है 24.77 का। तो अपने जितने भी पीयर्स हैं, चाहे उसको हम आर ओ सेल्स और करंट मार्केट बुक वैल्यू से कंपेयर करूँ तो सब में जो है ये फर्स्ट नंबर में देखने को हमें देखने को मिल रहा है। लाइक वाइज पैग रेशियो में भी जो है दे आर द लीडिंग वन। पी जो है इनका जो है 14.90 है। तो जितने भी यहाँ पे पीयर्स लिस्टेड हैं इसमें जो है किसी भी टर्म्स में अगर आप देखें तो सबसे हमें बेहतरीन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑल टाइम हाई से जो है हमें ये 42.32% डाउन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। और आज जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको जो है 42 वीक 52 वीक लो के आसपास में यहाँ पे जो है ट्रेड करते हुए भी देखने को मिल रहा है। सेल्स अगर मैं बोलूँ तो सितंबर 2025 में जो है वो 587 करोड़ रुपीस का जो है इन्होंने सेल करा हुआ लास्ट क्वार्टर में, जबकि सितंबर में जो है 626 करोड़ का करा था। वहीं पर ही जो है 28% के मार्जिन में जो ये काम कर रहे थे लास्ट सितंबर में, वो अभी 23% का मार्जिन में काम करा हुआ। नेट प्रॉफिट 81 करोड़ का था और अभी जो है वो 52 करोड़ के आसपास का जो है नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम इसका लॉन्ग टर्म पिक्चर को देखें तो मार्च 2024-25 और अभी 12 ट्रेलिंग मंथ का देखें तो 1929 करोड़ का था, फिर 2550 करोड़ का हुआ है और लास्ट 12 मंथ में जो है 2467 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है लास्ट ईयर के आसपास का ही सेल यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है यहाँ पे आप देखो कि शेयर जो है आपको 45% जो है ऑल टाइम हाई से नीचे के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। लाइक वाइज जो है अगर इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो हाईएस्ट एवर है। 402 करोड़ का जो है अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि हाईएस्ट एवर है। लास्ट ईयर जो है 28% का जो है इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन था, इस पर 26% का है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन 2% घटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है अदर इनकम जो है 15 से 17 करोड़ का हुआ था, 2 करोड़ का यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट में भी जो है एक्सपेंस वगैरह है ही, डेप्रिसिएशन का भी जो है यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 402 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर हम जो है लास्ट 5 साल का अगर मैं सेल्स देखूँ तो वो 33% से ग्रो करा है, 3 साल में 18% से ग्रो करा है, लेकिन जो प्राइस जो है वो मात्र 4% से मूवमेंट करी है। लाइक वाइज जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में भी जो है वो सेल 9% से ग्रोथ करने को देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्राइस जो है वो -29% से डी ग्रोथ करा हुआ है। तो यहाँ पे जो गैप जो नजर आ रहा है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में फुलफिल होता हुआ दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5 साल 3 साल और लास्ट ईयर में कंपेयर करें तो 27, 25 एंड 22% के आसपास में है। तो लास्ट ईयर में सबसे कम आरओई था। जैसे ही आरओई जो है ये इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली जो है इसका भी हमें बेनिफिट देखने को डेफिनेटली मिलेगा। वहीं पर ही अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो इक्विटी कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली सेम है, रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। लास्ट 3 साल में अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो 1213 था 2024 में, 25 में जो है ये 1860 करोड़ हुआ और सितंबर 2025 में जो है ये 2057 करोड़ के आसपास में ये हमें देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि दोस्तों आप ये देखो कि जो इसमें जो CWIP जो है इन्होंने जो है लास्ट 3 सालों का अगर मैं बोलूँ तो 2024 में जो है इन्होंने 483 करोड़ रुपीस जो है अपने बिजनेस में डाले थे। लास्ट ईयर में जो है काफ़ी कम था 64, और इस ईयर भी जो है इन्होंने जो है 309 करोड़ के आसपास में जो है अपने बिजनेस में डाला हुआ था। CWIP जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। यही जो है ये आपको बताता है कि आने वाले टाइम में जो है कंपनी जो है किस तरीके से जो है वो ग्रोथ करेगी। लाइक वाइज आप देख सकते हो कि इसकी जो फिक्स एसेट्स जो थे 2024 में जो 1700 करोड़ का जो होता था वो 2025 में जो है 2200 करोड़ का हुआ है, और सितंबर 2025 में जो है ये थोड़ा सा घट के जो है 2176 करोड़ के आसपास में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
टोटल एसेट्स अगर आप देखेंगे तो जो है लास्ट 3 ईयर्स का, तो 2024 में जो है 27 करोड़, 2025 में 3100 करोड़ और सितंबर 2025 में जो है वो 32 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफी बेहतरीन है, जितना ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं उतना ही जो है ये कैश में कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं, तो ये जो है ये काफी पॉजिटिव माना जाएगा। डेटर डेज जो है वो यहाँ पे जो है इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। इन्वेंट्री डेज जो है वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा बेटर नहीं है। 90 डेज का जो इन्वेंट्री डेज जो होता था वो 105 का हो गया है। उसके बाद में डेज पेबल जो है वो घटे हैं, 63 डेज में जो पेमेंट जाती थी वो 50 डेज में आ रहे हैं। लेकिन अगर पूरा कैश कन्वर्सेशन साइकिल अगर आप देखोगे तो जो 61 डेज में जो होता था वो अभी 88 डेज में हो रहा है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आरओसी जो है वो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो लास्ट 4 ईयर में 29%, 32%, 17 एंड 25% के आसपास में है, तो ये काफी अच्छा है। आने वाले टाइम में जैसे भी ये चीजें इंप्रूव होंगी तो और जो है इसका स्टॉक प्राइस में देखने को हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइक वाइज जो है अगर आप देखें कि प्रमोटर की जो होल्डिंग जो 2022 में जो 71% की होती थी वो उसने कुछ सेलिंग करके जो है अभी जो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 68.83 है, बट अभी भी जो है प्रमोटर ने काफी ज्यादा होल्डिंग कर रखी है, ऑलमोस्ट 70% के आसपास में प्रमोटर की होल्डिंग है। वहीं पर ही एफआईआई की होल्डिंग जो 2022 में 1% के आसपास की होती थी वो अभी जो है वो बढ़ के 2.71% के आसपास में देखने को मिल रही है 2000 सितंबर 2025 में। लेकिन अगर हम इसको जून 2025 से कंपेयर करें तो हल्की सी पोजीशन 0.3% के आसपास में जो है यहाँ पे कम हुई है। लेकिन यहाँ पे डीआईआई जो है 2022 में जिनकी 0.17% की मात्र होल्डिंग होती थी वो अब बढ़ के जो है वो 4.93% के आसपास में होल्डिंग हुई है। तो एफआईआई एंड डीआईआई दोनों जो है अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। डीआईआई ने तो जो है जून और सितंबर मंथ्स में जो है इसके बीच में भी जो है खरीदारी करी है और जो कि 4.78 से बढ़ के जो है 4.93% के आसपास की होल्डिंग बन गई है। गवर्नमेंट का जो है वो सेम है 0.02% के आसपास। पब्लिक में अगर हम देखें तो जो 27% दिसंबर 2022 में होता था वो घट के जो है अभी 23.52% हुआ है। पब्लिक से जो है वो बड़े लोग जो है एफआईआई डीआईआई जो है वो परचेज कर रहे हैं, जो कि काफी पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं पर ही जो है पब्लिक में भी जो है 25% का डेटा में 1.88% जो है वो यहाँ पे BIS फाइनेंस लिमिटेड जो है यहाँ पे कैरी कर रहा है। तो अपने जो पब्लिक के पास में जो इसकी होल्डिंग काफी कम है। वहीं पर ही अगर जो है अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर का भी अगर आप डेटा देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो 80,000 के आसपास में जो होते थे वो घट के जो है 79,000 हुए हैं, फिर घट के जो है अभी 78,000 हुए हैं। तो काफी बेहतरीन है यहाँ पे, जहाँ पे जो है पब्लिक जो है अपनी पोजीशन को डिक्रीज कर रही है और पब्लिक से जो है वो एफआईआई डीआईआई जो है वो बाय कर रहा है। तो ये काफी अच्छी बेहतरीन सिचुएशन मानी जाती है और ये जो है हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए काफी पॉजिटिव है। वहीं पर ही अगर जो है आप इसमें अपना डीप कन्विक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेटली कौन कॉल, क्रेडिट रेटिंग एंड एनुअल रिपोर्ट को डेफिनेटली गो थ्रू करिएगा। अब जो है हम मूव करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो ये जो है मैंने आपके सामने जो है 1 वीक का जो है वो चार्ट ओपन करा हुआ है। 1 वीक का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जब से इसकी स्टॉक जो है जब से लिस्टेड हुआ है, जो कि अगस्त 2021 में हुआ है और आज हम 25 में है, तो 4 साल की जर्नी जो है इसने पूरी कर ली है। यहाँ पे जो है इसने एक जो है वे बनाया था, एक जो है ट्रेंड लाइन इसने बनाई थी, जहाँ पे जो है दिसंबर 2023 में यहाँ पे टच करके वापस गया था। वहीं से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करें तो अभी जिस लेवल पे आई है बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में ही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से जो है ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू कर सकता है। लेकिन हम जो है कोई भी स्टॉक को जब हम जज करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 3 से 5 साल के लिए। 3 से 5 साल में आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो है ये एक जो है अच्छा बेहतरीन रनअप जो है वो दे सकता है। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है ये जो है 100 मूविंग डेज ऑन वीकली चार्ट जो है ये लगा रखा हुआ है। 100 वीकली डेज से नीचे आ चुका है और ये जो छोटी सी लाइन आपको दिख रही है ये 200 वीकली मूविंग डे चार्ट है। तो यहाँ पे जो है अगेन जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके जो है मूवमेंट जो है एक पॉजिटिव इसमें लग सकता है। तो दो काफी बड़े सपोर्ट लेवल यहाँ पे खड़ा है, एक 200 मूविंग डेज वीकली वाला और एक जो है ट्रेंड लाइन, जो कि जब से इंसेप्शन से जहां से इसने चलना चालू किया वहां से जो इसने ट्रेंड लाइन बनाई है उसके बिल्कुल पास में है। तो हमने जो है इस स्टॉक को टेक्निकली और इसको जो है हमने जो है फंडामेंटली भी जो है बोथ दोनों तरीके से जो है हमने एनालाइज करके देखा। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में जो है काफ़ी बेहतरीन कर सकती है। काफ़ी अच्छी बेहतरीन कंपनी है, फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, अपने आप में इसका फोटे है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो है ये जो है कुछ ना कुछ एक अच्छा मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है एक पूरी कंपनी को जो है डीपली एनालिसिस करा है, इसका फंडामेंटल इसके टेक्निकल दोनों एनालिसिस करे हैं। आप जो अपने फ्रेंड्स को जो है इस तरीके की वीडियोस जो हैं शेयर, लाइक एंड कमेंट करवाइए उनको देखने के लिए। उनको बोलिए कि किस तरीके से कंपनी की एनालिसिस करनी है, किस तरीके से जो है हम साथ में एक कंपनी को बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करके जो है एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो है साथ चल सकते हैं। अगर आपके दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली मैं जो उसमें रिवर्ट कर लूँगा। और अब जो है पॉसिबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है फिर से हम मुलाकात करेंगे विद न्यू कंपनी, न्यू स्टॉक एनालिसिस, डीप एनालिसिस हम स्टॉक की करेंगे और हम साथ में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मन थापा। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।